reciprocal lattice vector, we will discuss here the reciprocal lattice vectors in case of simple cubic, BCC and FCC. Before going to our further discussion, let us discuss what is reciprocal lattice. So if I have a direct lattice and a simple box which is in direct lattice, and the distance along x-axis is a vector, and along y-axis is b vector, and along c is c, then these vectors, that is a, b and c. So these a, b, c are the direct lattice vectors, while a star, b star and c star, these are their reciprocal lattice vectors. And how they are related to direct lattices, that is a star will be b cross c into divide a dot b cross c, and that is nothing but a volume. Similarly, b star is a cross c and a dot b cross c, again volume, and this is c star is a cross b and again volume. So properties of lattice vectors in reciprocal lattice are a star a, that is equals to 1, and our vector, that is a is perpendicular to both b and c, that is a star b, that is this a star and b, and a dot c will be 0. Similar is the case for b star and c star. So अब मुझे करना क्या है, क्योंकि रेसिप्रोकल लैटिस हम सिंपल क्यूबिक में डिस्कस करने जा रहे हैं. 3 टाइप ऑफ लैटिसेस हम जिसको डिस्कस करना है, दैट इज फर्स्ट फॉर सिंपल क्यूबिक, सेकंड फॉर बीसीसी एंड थर्ड फॉर एफसीसी. सो सिंपल क्यूबिक के लिए जो हमारी डायरेक्ट लैटिस होती है, दैट इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू ए आई, बी इज इक्वल्स टू bj, and c is equals to ck. So these are the direct lattices. You can say these are the direct lattice vectors. But in case of when we use this a, b, c here in a star, b star and c star, we will get a star is equals to 2 pi over a along I, and b star is equals to 2 pi over a j, and c star is equals to 2 pi over a k vector. So these stars, or we can say these vectors, are the vector in reciprocal space or reciprocal lattice vectors. For what? For simple cubic. Simple cubic. Now, these are the system in case of simple cubic. Now we will discuss for BCC. तो BCC का जो स्ट्रक्चर है, वैसे हमें बॉडी के सेंटर में एटम को देखना होता है, तो लेट अस कंसीडर दिस इज अ सेंट्रल एटम हियर, और जो डिस्टेंसेस हैं ए स्टार, बी स्टार एंड सी स्टार, दैट इज इन रेसिप्रोकल. सो अगर मैं यहाँ इसका डिस्टेंस जो है ए, बी एंड सी, ओके, डैश, A dash, B dash, C dash, then A dash is a vector in direct space and A star is a vector in reciprocal space. तो मुझे क्या करना है, यहाँ पर reciprocal lattice vector निकालने हैं, और यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, डायरेक्ट लैटिस में. ओके, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स. तो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स में ए जो आपका यहाँ बैठा हुआ है, ए फर्स्ट पोजीशन जो है एटम का ए में, दैट इज ay2 i प्लस j माइनस 2. और सिमिलरली आप बी के लिए लिख लीजिए, बी इज इक्वल टू ay2 एंड j प्लस k माइनस i, and c vector is equals to ay2
k plus I minus j। तो ये वेक्टर जो है a स्टार, a डैश, b डैश, c डैश, ये किस में आए आपके? ये आए आपके डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स। और अगर हमने रेसिप्रोकल में यही वेक्टर्स देखने हैं तो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जो मुझे मिलेंगे कैलकुलेट करने के बाद वो होंगे आपके a स्टार इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर a I plus j and b star is equals to 2 pi over a j plus k and c star is equals to 2 pi over a again and k plus I। So ये vectors जो हैं they are in reciprocal space। Now ये कैलकुलेशन जो है वो कैसे होगी? हमने जो फॉर्मूला यूज करना है वो फॉर्मूला हमने कौन सा यूज करना? दैट इज दिस वन। Okay, that means if we want to calculate a star, then what will we have to do? That v cross c into a dot b cross c, we have to calculate their cross product and also dot product with this. Similar is the case for here, that is a star is b cross c over a dot b cross c. Okay, so here we have taken the indirect lattice, that is b dash c dash dashes. So we will calculate one of the reciprocal vector, that is a star. So here b dash is ay2 and I plus j minus k आ गया, और साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो क्रॉस लिख लीजिए, और c डैश जो है दैट इज k प्लस आई माइनस जे, ये हो गया साथ में। और बिकॉज ay2 इसके साथ भी है b क्रॉस c, तो आप क्या कर लीजिए a स्क्वायर ओवर 4 कर लीजिए इसको, डिवाइडेड बाय a डॉट, सो a इज ay2 I प्लस j माइनस के, एंड डॉट प्रोडक्ट किसका है? जो आपने b क्रॉस c लिखा हुआ है, दैट इज a स्क्वायर ओवर 4 इंटू I प्लस j माइनस के इंटू k प्लस I माइनस j। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यूज और डॉट प्रोडक्ट का वैल्यूज आप जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है सॉल्यूशन क्या मिलेगा इसका, दैट इज a स्टार इज 2 पाई ओवर a I प्लस j। तो सिमिलरली हम प्रोसीड कर सकते हैं b स्टार और c स्टार के लिए, और उसका वैल्यू जो है आपको यहाँ पे गिवन है कि b स्टार और c स्टार आपने कैसे कैलकुलेट करना है। देन थर्ड वन इज FCC। तो ये मेरे पास जो स्ट्रक्चर है अभी ये FCC का है, और FCC के जो यूनिट सेल्स हैं, सॉरी आपके जो वेक्टर्स हैं FCC के, ये आपका ओरिजिन है मान लीजिए, और इस ओरिजिन से ये आपके वेक्टर्स हैं, दैट इज दिस वन इज A, और इसको आप B ले लो और इसको आप C ले लो, ठीक है। तो ये वेक्टर्स जो हैं ये किस में है? डायरेक्ट लैटिस में है। तो डायरेक्ट लैटिस के जो वेक्टर्स हैं ए बी सी, वो आपने क्या करना है? रेसिप्रोकल में निकालने हैं। तो डायरेक्ट लैटिस में ये जो आपके पॉइंट्स हैं दैट इज ए बी एंड सी, ए बी सी, वो क्या होंगे? दैट इज ए इज इक्वल्स टू ay2 I प्लस j, b is equals to ay2 j plus k, and c is equals to ay2 k plus I. These are the vectors in direct space.
in direct lattice. So by using the formula again, that A star is equals to B cross C और A dot B cross C, तो हम यहाँ पे देखेंगे ये जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, दिस इज इन रियल स्पेस, डायरेक्ट स्पेस. These are also A dot B cross C volume is in direct space. तो रेसिप्रोकल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट स्पेस. तो इस तरह से हमारे पास जो है A स्टार जो निकल के आएगा, दैट इज A स्टार फॉर in reciprocal space. Let us write here for reciprocal space. रेसिप्रोकल स्पेस के लिए मेरे पास जो है वैल्यूज A स्टार की निकल के आएगी, दैट इज A इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर A I प्लस J माइनस ऑफ K. B star is equals to 2 pi over A J plus K minus of I, and C star is equals to 2 pi over A I plus J minus of K. So ये क्या किया हमने, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकाल लिए. कहाँ से, डायरेक्ट लैटिस से. और कैसे निकाले, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, दैट इज A स्टार and B star is equals to C A again volume, and C star is over A cross B over volume. And what is volume here? Volume is A dot B cross C. So इस तरह से अगर हम चेक करें इसे FCC के स्ट्रक्चर को, तो FCC के जो रेसिप्रोकल निकल के आ रहे हैं, रेसिप्रोकल वेक्टर्स, वो क्या है, BCC के क्या है, डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स हैं. तो इसका जो फिगर अगर हम चेक करें, तो डायग्रामेटिकली अगर यहाँ हम देखें तो आपकी BCC है ये. तो BCC का जो स्ट्रक्चर है वो हमें क्या देता है, FCC का रियल स्पेस. Okay, again we can see that this is our BCC lattice in direct space. Okay, और यहाँ पर A B C या फिर A1 A2 A3 कह लीजिए आप, ये जो वेक्टर्स हैं आपके किसमें है, डायरेक्ट स्पेस में है. ये रीजन से पॉइंट जो भी आपके A B C यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं, नॉट A B C, यहाँ पर आपका A1 जो है दैट इज A, and A2 is equals to B and A3 is equal to C. तो आप जो है जहाँ पे भी 2 3 लिख रहे हैं वहाँ पे BC से रिप्लेस कर सकते हो. तो यहाँ पे डायग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ क्या है, दैट इज A1, दिस इज A2 एंड दिस इज A3. तो ओरिजिन से जो डिस्टेंसेस हैं ये किस में है, डायरेक्ट स्पेस में है. तो ये क्या है, आपके डायरेक्ट लैटिस वेक्टर्स हैं. तो डायरेक्ट लैटिस वेक्टर के जो BCC था उसने मुझे क्या दिया, रेसिप्रोकल लैटिस जो दिया वो किसका है, वो किसका है, आपका FCC का है. FCC का क्या है, डायरेक्ट लैटिस है. ओके, ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो जो FCC का ये स्ट्रक्चर जो है ये आपका रियल स्पेस में है, डायरेक्ट स्पेस में है. ओके, और यहाँ पर जो हमें मिला BCC का रेसिप्रोकल, वो क्या मिला, FCC का डायरेक्ट. ओके, ये तो सिमिलर स्ट्रक्चर है, ये आपका यहाँ पे डायरेक्ट है और BCC का जो रेसिप्रोकल निकल के आया वो क्या है, FCC का डायरेक्ट लैटिस. So this is all about your reciprocal and real space, how they are connected with each other. In next video we will see that is what is Brillouin zone.